काफी लोग आएंगे। अच्छा, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, डेंटल केरीज, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेंटल केरीज इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। सो डेंटल केरीज वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ी थी डर्ट्स के अंदर। सो डिफरेंस कोई भी नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर आपकी जो थिकनेस ऑफ एनामल एंड डेंटिन है वो बहुत लेस होती है, एंड दीज पेशेंट्स डोंट ब्रश देयर टीथ प्रॉपरली। उनको गाइडेंस उस तरह से नहीं होती है, तो दैट्स वाई के उनमें केरीज का रेट ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई हम पेशेंट्स की फ्रीक्वेंट फॉलोअप करते हैं, बच्चों की खास तौर पे, और उनमें प्रिवेंशन ट्रीटमेंट जो है उनको ब्रशिंग का आइडिया बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं, सो दैट अगर बच्चा ब्रश नहीं कर लेता तो उसके पेरेंट्स को गाइड करें हाउ टू ब्रश द टीथ। So because of enamel and dentin both thin in quantity, so once the caries is there, rapidly progress to the pulp, and then obviously it's a very common misconception के ये deciduous दांत extract हो निकल जाने होते हैं, exfoliate हो जाने होते हैं, but they will take about 10-12 years. So for that time we have to save all these deciduous teeth until the natural exfoliations and natural eruption. Okay, so today we'll discuss about dental caries in pediatric patients. As we know that it's an infectious disease of microbial origin that results in destruction of calcified tissues. अब इसमें destruction में enamel और dentin दोनों है. Okay, so it's an infectious disease. That means infectious का मतलब क्या है? Because of plaque deposits, and then the bacteria they just ferment the carbohydrates and they produce a lactic acid, and lactic acid that basically demineralize the dental hard tissues. So that's a very common thing जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं already. अच्छा, अब as you know that के anatomy of the molars, pits and the fissures of the common zone होता है. मैंने बताया था in the lecture of the caries of adults के the most common site for the caries is the pits and fissures. The reason being is के pits and fissures वो areas हैं जहाँ के आपके dental lobes properly जो है ना वो आपके कंफ्यूज नहीं करते, dental lobes defective होते हैं, तो they have a deep area जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचता. तो वंस द प्लाक डिपॉजिट इन दैट एरिया, सो वहाँ पे आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और वहीं से प्रोसेस ऑफ केरी स्टार्ट होता है. सो उसमें पहले इनिशियली वाइट स्पॉट लीजन्स होते हैं. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि वाइट स्पॉट जो हैं इट्स द अर्लियर साइन ऑफ द केरीज, वी कॉल इट वाइट स्पॉट लीजन्स, एंड वंस यू ब्रश द वाइट स्पॉट्स तो वो रीमिनरलाइज हो जाते हैं. बट वंस यू डोंट ब्रश देम, व्हाट हैपेंस कि वाइट स्पॉट जो हैं they turns into the brown yellow spots and brown spots, and then the caries जो progress कर जाती है. So until the tissue is intact, means enamel is intact, so we can arrest the lesion. But once the enamel is defective, or we can say the caries in enamel, so then हमें उसको restore करना पड़ता है. What are the indications of restoration? के patient में cavitation है, sensitivity to hot and cold है, and sensitivity to sweets हैं, उसको pain है. So उन cases के अंदर once the cavitation is there, then we have to restore. Until there is no cavitation, we can arrest the lesion with the brushing, okay, with the fluoride paste and all these things. So pits and fissures the highest जो है वो risk for the development of the caries. So that's a Keys-Jordan diagram. इसमें चार चीजें बहुत important हैं. The bacteria is a host. Bacteria है, teeth and the sugars. Means के आपके तीन different areas हैं. If you control that bacteria, you can arrest the caries. If you just normalize or modify the anatomy of the tooth structure, you can control the caries. But if you adjust the diet of the patient, okay, so then you control the caries. So by controlling these three things, you can control the dental caries. Okay, so bacteria hai, teeth hai, and sugars hai. Okay, so role of tooth in etiology of the caries, the most important is anatomy. You know, all the patients don't have a very aggressive anatomy. Some patients have very deep fissures in the pits, and most commonly उन patients के अंदर chances ज़्यादा होते हैं. Okay, and then we have a arch form. Some patients have a malaligned dental arches. You know, in case of orthodontic patients में जहाँ पे overlapping of the teeth है, जहाँ पेशेंट ब्रश नहीं कर रहा प्रॉपरली, हो सकता ही नहीं है ब्रश उसके अंदर, बिकॉज टीथ ओवरलैप किए हुए, तो प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स में फूड लॉजमेंट है और वहाँ पे केरीज प्रोग्रेस होती है.
सो उन पेशेंट्स में जो है वो जो केरीज की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। सेम इज दैट प्रेजेंस ऑफ डेंटल अप्लाइंसेस जिनमें ऑर्थोडोंटिक रिटेनर्स लगे होते हैं, ऑर्थोडोंटिक वाइड्स लगी होती हैं। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज वाइड्स you cannot brush the teeth properly. I think if you people have braces in your lifetime, you can imagine that how difficult to brush the teeth in the presence of the dental wires and orthodontic brackets and the band. So these all things matters a lot. Then we have a composition. Okay, so composition में ये है कि melogenesis imperfecta है, dentinogenesis imperfecta है, और हाइपोप्लास्टिक डेंटिन है जहाँ पे इनेमल और डेंटिन में डिफेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे ब्रश करना मुश्किल है, और अगर इनेमल नहीं है और डेंटिन भी डिफेक्टिव है तो केरीज को प्रोग्रेस करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि एक टूथ के ऊपर हमें देखने हैं। वन इज एनाटमी, सेकंड इज आर्च फॉर्म एंड थर्ड इज डेंटल अप्लाइसेंस जो कि ऑर्थोडोंटिक वाइड्स हैं, बैंड्स हैं, ब्रैकेट्स। इन कॉम्पोजिशन कि इनेमल डिफेक्टिव है, डेंटिन डिफेक्टिव है, इनेमल इमेच्योर है, डेंटिन इमेच्योर है। सो वंस द आपका डेंटल हार्ट टिश्यू इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर शेप एंड प्रॉपर स्ट्रेंथ, सो जो प्रोग्रेशन ऑफ केरीज है देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन दैट। सो एनाटमी जो है आपकी जो पिट्स हैं मैक्सिलरी मोलर्स की एंड इंसाइजर्स की, बिकॉज इफ यू सी दैट ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सो इफ यू सी दैट कि पैलेटल जो पिट्स होती हैं दे आर वेरी डीप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जो प्रोग्रेशन ऑफ केरीज है वो पैलेटल पिट्स पे स्टार्ट होती है इन केस ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स एंड इंसाइजर्स, बिकॉज दीज एरियाज आर वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। ओके, एंड देन बकल पिट्स और मैंडिबुलर मोलर्स हैं, बिकॉज ये आमतौर पे सेल्फ क्लींजिंग एरियाज होते हैं बट पेशेंट डोंट फोकस नहीं करेगा तो यहाँ पे भी बहुत चांसेस है केरीज डेवलप होने के। Then we have well, because these areas, pits areas, I told you that pits and fissures, two different areas हैं जहाँ पे जो vulnerable to caries हैं. The reason being is patient cannot clean them and they are very deep areas, so brush आपका वहाँ पे नहीं पहुँचता. So most of the times पे patients को वहाँ पे आप clinical examination में caries को diagnose करते हो in different areas के अंदर. Like these areas, you know, अगर हम बात करें इसकी तो आपके जो बक्कल पेट वाला एरिया है obviously the self cleansing area, but if you see that this area is a normal and this area is a normal, but this is a very deep area, then patient brush करेगा तो possible है कि जो ये एरिया है ये basically ignore हो जाए और यहाँ पे basically progression of caries start होती है। ठीक है, so these are the buccal pits. Then arch form, they मैंने बात की पहले crowding and overlapping of the teeth. Obviously when the teeth are overlapped, so you cannot brush them properly. So that's the one reason. Okay. Like this one, you know, if the food is trapped here, patient का brush यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा. Same is that patient brush cannot reach in that area. So these areas are self cleansing, but these areas are not cleansing. So here the problem of the caries starts. So that's why always ask the patient to go to the braces, align the teeth, and you know कि most of the time patient present होता है with a malalignment के साथ, they have a lot of caries. So that's why कि आपको इसको जो है वो अलाइनमेंट करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, सो अब डेंटल अप्लायंसेस रेस्टोरेशंस हैं, सो दीज इनकरेज द रिटेंशन ऑफ फूड, डेब्री एंड प्लाक। ये जो डेंटल अप्लायंसेस हैं और जो प्रोस्थेटिक वायर्स हैं, एंड यू नो दैट दीज वायर्स आर जस्ट लाइक अ हिंड्रेंस फॉर द प्रॉपर ओरल हाइजीन। सो हमें इनको पेशेंट्स को एडवाइस करना पड़ता है कि आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश यूज़ करना है, और दैट ऑर्थोडोंटिक ब्रश वर्क बेटर। इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं जो कि वाइड्स के थ्रू हम क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज सच पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सो वी कॉल देम ऑन डेली ऑन फ्यू मंथ्स बैक एंड गो विद स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इन केस ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। लाइक दैट वन यू सी, सबसे कॉमन जो लीजन्स डेवलप होते हैं वो ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स के आप बिलो डेवलप होते हैं और वाइट्स के लॉन्ग डेवलप होते हैं। वाइट स्पॉट लीजन्स या ब्राउन स्पॉट लीजन्स, इनकी मैनेजमेंट सिंपल फ्लोराइड एप्लीकेशन से हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं, बट व्हेन देयर इज अ कैविटेशन देन वी हैव टू रिस्टोर देम। So composition of the teeth, you know, surface zone of enamel is more mineralized structure, you know, and it's more resistant. And you see that कि enamel का जो intact zone है वो top zone intact रहता है और underlying जो caries है वो develop हो जाती है। So because के enamel का वो area जो है वो in direct contact with the saliva है,
Okay, so that's why वो area more mineralized है and more resistant to caries है. Okay. A role of saliva, and you know that I told you that last lecture के saliva is a very जो important role है. इन पेशेंट्स में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या ग्लैंड डिसफंक्शन के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे फ्लो ऑफ सलाइवा जो है वो अच्छा नहीं होता. सो दैट्स व्हाई दीज पेशेंट्स हैव मल्टीपल केरीज, एंड द रीजन बीइंग इज कि सेल्फ क्लींजिंग नहीं होती है और कंपोजिशन ऑफ सलाइवा जो है उसमें बाइकार्बोनेट्स उस तरह परफॉर्म नहीं करते जिस तरह नॉन पेशेंट परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स व्हाई के उनमें जो है केरीज का रेट ज़्यादा होता है. Flow rate obviously matters a lot. If a patient have a decreased flow rate, obviously there is no self-cleansing areas. There is no self-cleansing action by the saliva, and that patients have more chances of dental caries as compared to the patient that have normal flow of saliva. That's 1 to 1.5 liters. Therefore, one should brush teeth before sleep as salivary flow decreases. So that's why रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता है कि इन द नाइट स्लीप के अंदर आपका जो फ्लो ऑफ सलाइवा है वो इज नॉट नॉर्मल, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुका होता है. सो दैट्स वाई इफ यू डोंट ब्रश द टीथ, सो द सेल्फ क्लीनिंग जो एक्शन ऑफ सलाइवा इन द ओरल कैविटी है वो बेसिकली नहीं होगा. So once you clean the oral cavity, so if there is the if flow of saliva normal नहीं भी है, जो कि एक normal चीज़ है, when the patient is sleeping, so flow of saliva normal नहीं होता. So that's why उनमें caries rate ज़्यादा होने के chances नहीं है if you brush the teeth properly. अब जो salivary buffers हैं mainly bicarbonates. Okay, so these are the very important content of the saliva. We call it bicarbonates, जो कि basically neutralize करते हैं acids को. Okay, and viscosity in case of cancerous patients के अंदर, if you examine the oral cavity, you will feel that the ropes of the saliva in the teeth, saliva thin नहीं होता, वो बिल्कुल thick होता है, and they are just like the layers. Okay, so उन patients के अंदर सेल्फ क्लींजिंग एक्शन ना होने के बराबर है. सो दैट्स व्हाई कैंसर पेशेंट्स के अंदर केरीज का रेट ज़्यादा है. सो ऑलवेज रिमेंबर बिफोर दैट पेशेंट गोइंग इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, हम उस पेशेंट्स की ओरल हाइजीन इंप्रूव करते हैं, उसकी स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, जो रिस्टोरेशन होने वाली होती हैं हम वो रिस्टोरेशन परफॉर्म करते हैं. जो ट्रीटमेंट उसकी डेंटल होनी है दैट शुड बी डन बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैंसर की थेरेपी स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज ड्यूरिंग कैंसर आपका फ्लो ऑफ सलाइवा बहुत रिड्यूस हो जाता है, माउथ ओपनिंग कम हो चुकी होती है, बिकॉज रेडिएशंस जो हैं वो आपकी मसल्स को फाइब्रोज कर देती हैं. सो दैट्स व्हाई माउथ ओपनिंग काफ़ी कम होती है और दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस. सो एवरी ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर द थेरेपी ऑफ द कैंसर. ओके, so these are antibacterial activity in the saliva. That's why saliva is important. One is bicarbonates, and then we have a lysozyme enzymes and lactoperoxidase and Ig antibodies. So these are very important contents of saliva. If someone asks you about the contents of saliva, you can say the different contents of saliva. So bicarbonates, and then we have antibacterial components. सो माइक्रोफ्लोरा में वही म्यूटेनस जो कि अडल्ट केरीज में भी रिस्पॉन्सिबल है, वो डिसीजोस में भी रिस्पॉन्सिबल है. स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कॉज केरीज. if someone asks you what is the most common organism, you can say streptococcus mutanus. Okay, it's the most common organism found in dental caries. Then plaque, when you don't brush your teeth, so a layer of the deposits that basically just adhere to the tooth surface and provide an environment where bacteria can ferment the carbohydrates. That's a plaque. Okay, so pellicle की बात की थी. Pellicle जो है brushing के फौरन बाद deposit होती है, that is structureless layer and that helps in remineralization. Okay, and plaque जो है that basically helps in the action of the bacteria where the bacteria can ferment the carbohydrates and they produce lactic acid, and plaque is just an environment, or we can say it's a biofilm. Okay, so adhering to the tooth surface in the oral cavity, it begins to form within 2 hours of a teeth are brushed. Means आप brush करने के फौरन बाद तो pellicle बनेगा, but if pellicle is there, pellicle भी basically is a disadvantage in that form कि it provides an environment for the adherence of the bacteria.
सो बेसिकली पेलिकल का एक बेनिफिट तो है कि वो हेल्प करेगा रीमिनरलाइजेशन के अंदर। दूसरा जो नुकसान है वो डेरेस और बैक्टीरिया करेगा। और प्लाक इज अ डिफरेंट थिंग। प्लाक इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर्ड लेयर है, इसमें बैक्टीरियाज हैं, उनके कंटेंट्स हैं एंड एसिड्स हैं, ओके, एंजाइम्स हैं। सो प्लाक बेसिकली इज द एरिया वेयर बैक्टीरिया जस्ट ferment the carbohydrates and they lead to demineralization. The diet and dental caries, obviously you know that carbohydrates is a very established role in initiation of caries. So foods कौन से हैं, proteins हैं, fats हैं, calciums हैं, fluoride. So important is that these are the karyostatic foods हैं. So that's why you ask the patient to use the fluorides and calcium tablets होती हैं, and then we have fats and proteins हैं. So in case of जो आपके basically ये junk foods होते हैं and these are responsible for the carry. So you ask the patients कि आप diet control हम तभी करते हैं initial visit के अंदर. We ask the patient to bring your diet history, and diet history is based on 3 consecutive days, mostly weekends पे, and ask the patients कि whatever you take in that 3 days you have to write it down on a paper and bring to us. और फिर उसके अंदर हम फिर modify करते हैं what the patient is doing wrong and what the patient is doing right. उनमें हम एक्सक्लूड कर लेते हैं जो रॉन्ग थिंग्स हैं, जो राइट चीजें हैं. सो उस तरह से हम पेशेंट्स की प्रिवेंशन स्टार्ट करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर वी आर हियर नॉट टू ड्रिल एंड फिल द कैविटी, वी आर हियर टू प्रिवेंट द कैविटी. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन these are few studies हैं, जैसे वाई मॉम स्टडीज थी, इट मीन्स के इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कैरीज in between meal snack increase carry. So that's why you ask the patients कि आपने कुछ भी लेना है वो मील टाइम पे लें, बिटवीन मील ना कुछ लें. ओके, बिकॉज आप ए वन शुगर अटैक जो कि लिव फॉर अबाउट 30 मिनट्स, सेकंड शुगर अटैक लिव फॉर अबाउट 30 मिनट्स. सो अगर पेशेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर शुगर इनटेक करता रहेगा सो न्यूट्रलाइज होने के चांसेस ओरल कैविटी में नहीं होंगे. So once there is no neutralization, so there is a frequency of the carry. So that's why you ask the patients to whatever you want to eat, a meal time ले. If you want to take some sugar diet, so meal time पे ले. In between meal हम avoid करें as much as possible. So that's a very important point जो आपको patient को history के अंदर बताते हो. समझ आ रही है बात की? हेलो जी सर. जी कोई सर. कंफ्यूजन तो नहीं बेटा अभी तक? No, sir. नो सर. Then we have a proteolytic theory. Gates का मतलब क्या था कि protein splitting microorganisms acts on a tooth followed by acid dissolution. So proteolytic के proteins को split करता था and they just lead to the destruction of the tooth. So this theory is very important here. We know chelation theory है, proteochelation theory है. So these theories are very important in prospective exam. Okay. Then theories of demineralization and remineralization. As we know that a critical pH for enamel is about 5.5 है, और for dentin it's about 6. So अगर pH इतनी रहेगी so there is start of demineralization. अगर हम उस acid activity को neutralize कर दोगे by just asking the patient to have milk या fluoride के साथ या even के rinse of the water के साथ अगर हम acid को neutralize कर देंगे तो प्रोसेस ऑफ रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट्स इट्स कंट्रोल ऑफ आवर्स कि हम पेशेंट को कैसे गाइड करते हैं, एंड दैट शुड बी डन इन द इनिशियल हिस्ट्री टाइम. सो पेशेंट को हिस्ट्री के दौरान हम ये तमाम प्रिवेंशंस बताते हैं. अगर मीठा लेना है तो फौरन पानी से रिंस कर दिया जाए, सो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैरीज के अंदर वी हैव एनामल कैरीज. इसमें आपकी ICDS आपकी साइट एंड साइज क्लासिफिकेशन जो अडल्ट्स में पड़ी थी, हमें वही क्लासिफिकेशन जो है तो डिफरेंट है. जस्ट लाइक वही क्लासिफिकेशन बच्चों में भी यूज होगी, बट क्वेश्चन जो है कैरीज का जनरल आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैरीज क्या है. दे डोंट आस्क यू क्लासिफिकेशन ऑफ कैरीज इन डिसिडुअस टीथ, ऐसा नहीं होगा. दे विल आस्क यू क्लासिफिकेशन ऑफ कैरीज. सो आपने ICDS साइट एंड साइज और GB ब्लैक पे फोकस करना है. दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ द कैरीज. इट्स लाइक एनामल कैरीज है, पिट्स एंड फिशर कैरीज है, स्मूथ सरफेस है, एक्यूट डेंटल कैरीज जो रैपिड प्रोग्रेस होंगी, एंड क्रॉनिक जो कि अरेस्ट हो चुकी हैं और डार्क हो चुकी हैं. एंड देन वी हैव अ रिकरेंट कैरीज कि आपने रिस्टोरेशन परफॉर्म की है और कोई मार्जिन ओपन रह गए हैं लीकेज की वजह से, वहाँ पे कैरीज डेवलप हो जाती है. सो दैट इज बेसिकली रिकरेंट कैरीज. देन वी हैव अ रेस्टेड कैरीज.
जो केरीज अरेस्ट हो चुकी होती है, मींस अगर हम एक टूथ को जो कि इंटैक्ट था उसमें केरीज है, बट दैट एनामल सरफेस इज इंटैक्ट। बेटा कौन बात कर रही है दरमियान में? सो अरेस्टेड केरीज वो केरीज हैं जो कि पेशेंट को आप जब कहते हो कि आप इसको ब्रश करें तो वो वाइट से येलो, येलो से डार्क, इट टर्न्स इनटू डार्क, दैट मींस अरेस्टेड फॉर्म है। ओके, देन वी हैव अ रैम्पेड केरीज, रैपिडली प्रोग्रेसिव केरीज हैं, ओके, जैसे बच्चों में होती हैं। देन वी हैव अर्ली चाइल्डहुड केरीज हैं, ओके। सो रैम्पेड केरीज है, रैपिडली अपेयरिंग केरीज है, ओके। रैपिड ऑनसेट है बिकॉज एज यू टोल्ड यू दैट इन डिसीडुअस में जो एनामल और डेंटिन की थिकनेस बहुत कम होती है, सो दैट्स व्हाई अर्ली पल्प इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं। सो वी नीड टू फॉलो द पेशेंट इन अ डिसीडुअस एज एज मच एज पॉसिबल। हम उसको फॉलो पे रखते हैं, हम उसकी ब्रशिंग प्रॉपर एवेलुएट करते हैं, ओके। उसको ब्रश करने का तरीका बताते हैं मॉडल के ऊपर। सो अगर बच्चा फॉलो नहीं करता तो पेरेंट्स का ब्रश करें, ओके। सो 10 न्यू लीजन्स अपीयर एवरी ईयर, इमेजिन दैट कि पेशेंट की ओरल हाइजीन, हाउ मच बैड द ओरल हाइजीन इज, के 10 न्यू लीजन्स अपीयर एवरी ईयर। सो मींस के रैपिडली प्रोग्रेशन है इन केस ऑफ रैम्पेंट केरीज के अंदर, like see that thing, so rampant, so we have to parents कहेंगे कि ये दांत तो निकल जाने हैं because these are milky tooth, but you have to say the parents कि ये हर दांत अपनी एज पे निकलेगा। just like मोलर जो हैं वो 6 years में निकल जाते हैं, but जो आपके canines हैं या आपके जो बाकी दांत हैं वो 12-13 साल की उम्र में निकलते हैं। so we have to save them। so save कैसे करना है? by doing pulpotomies, by doing pulpectomies, और बाय अगर कोई दांत बहुत ही बैडली डिकेड है, एक्सट्रैक्शन के बाद स्पेस मेंटेनर। सो बेसिक पर्पस इज टू मेंटेन द स्पेस फॉर द परमानेंटली, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी नो द प्लान ऑफ द पेशेंट, ओके। देन वी हैव अर्ली चाइल्डहुड केरीज, वी कॉल इट ईसीसी। क्या पता आपको एग्जाम में ईसीसी लिखा आया हो, अर्ली चाइल्डहुड ना लिखा हो। सो इसकी इटियोलॉजी क्या है? फ्रीक्वेंट शुगर कंजप्शन है, ओके। जो पेशेंट्स बेसिकली वो दूध की बोतल मुंह में लेके सोते हैं बच्चे फीडिंग के दौरान, उन पेशेंट्स में बच्चों में ज़्यादा होता है। सो यू आस्क द पेरेंट्स के उसको दूध पिलाने के बाद उसको पानी से रिंस कराएं, देन सुलाएं उसको। उसके मुंह में जो फीडर है वो नहीं रहना चाहिए, सही है। सो दैट्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू गिव द पेरेंट्स, ओके। एंड ट्राई टू अवॉइड टू पुट सम शुगर इन द फीडर, ओके। और जब बच्चा सो जाए तो सोने से पहले उसको दूध पिलाएं, उसको पानी से रिंस कराएं, एंड देन आस्क हिम और हर टू स्लीप, ओके। सो मुंह में फीडर लेके वो ना सोए, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू आस्क द पेरेंट्स, ओके। अगर वो फीडर लेके सोएगा तो केरीज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। देन फ्रीक्वेंट जूस कंजप्शन और स्नैकिंग है, आप पेरेंट्स को एडवाइस करते हो कि इसे कम से कम रखा जाए, जस्ट लाइक द वे कि आप उसको फीडर अब दूध पिला के सुलाओ उसको। ठीक है, उसको फीडर पिला के सुलाएं और पानी से रिंस करा के सुलाएं, ऐसे ना सुलाएं उसको। देन टाइप जो है क्लासिफिकेशन है, इट्स जस्ट लाइक अ टाइप 1 माइल्ड टू मॉडरेट। आइसोलेटेड लीजन्स हैं जो कि मोलर्स और इंसाइजर्स पे होंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केरीज, तो जो टाइप 1 है उसमें सिर्फ लीजन्स होंगे मोलर्स पे और इंसाइजर्स पे, ओके, जस्ट लाइक द वन। देन टाइप 2 में लेबियोलिंगुअल केरीज के लेबियल साइड पे भी होगी और लिंगुअल साइड पे भी होगी, इंसाइजर्स पे, ओके। इसमें मैंडिबुलर इंसाइजर इफेक्ट नहीं होंगे, ओके। सो कॉज इज इनअप्रोप्रिएट बॉटल फीडिंग। सो रिमेंबर के जो क्लासिफिकेशन टाइप 1 थी उसमें मोलर्स पे और इंसाइजर्स पे होंगे, और टाइप 2 में मॉडरेट टू सीवियर के अंदर लेबियोलिंगुअल साइड पे केरीज होगी, सो टाइप 2, ओके। Type 3, caries involving almost all teeth, including lower incisors even. So type 1, type 2 and type 3. So you have to remember the classification of early childhood caries. These are type 3, सही है। Then management of caries क्या है? Prevention में बता चुका हूँ कि fluoride applications हैं, okay, and fluoride brushing है, diet history है, ये तमाम preventions में आएंगी। एंड देन मैनेजमेंट में हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे, ग्लास आइनोमर सीमेंट्स हैं, these are basically cements used to restore the caries in deciduous teeth. We have glass ionomers,
we have a resin moldable glass ionomers, then we have a composites, then compomers, and then finally, if we cannot restore the teeth, we have a stainless steel crowns, जो कि आप already पढ़ चुके हैं. Okay? जी बेटा, any question? Sir. If there is any question, you can ask because the lecture is about to end. कोई आप लोग चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. No, sir. Okay. Please mark your attendance before leaving.